So I am going to explain you about the pressure enthalpy chart. Pressure enthalpy chart in general first I will explain, then pressure enthalpy chart of individual refrigerant. Here the pressure enthalpy chart, most convenient chart for studying the behavior of a refrigerant. Abscissa represent enthalpy and ordinate represent pressure. The figure is itself explanatory. देखिए ये चार्ट आप देखें ध्यान से, तो यहाँ देखेंगे आप कि प्रेशर वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर एंथैल्पी और प्रेशर का चार्ट है. नाउ व्हाट हैपन्स एज द एंथैल्पी मूव्स विद प्रेशर, this chart is curved. It is curved like this, okay, curved like this, then it goes downward over in this region. So now distinction that this side of the chart, that is the subcooled region, liquid region I should say, subcooled region. This side of the chart is your superheated vapor region, so superheated vapor region and subcooled region. In between that it is the liquid and gaseous phase, combined liquid and gaseous phase over here. This point is your critical point. So now let us see the line. See, this is the constant temperature line. This vertical line are constant temperature line in the subcooled liquid region. These line get horizontal inside this your in between the gas and liquid region. These line get horizontal, and afterward when they reach it in the superheated region, they goes downward, temperature line goes downward. Okay, so starting point temperature line is going vertical, then it is becoming horizontal, and then it is going downward. This is the temperature line. Now another line, this line, that is your constant enthalpy line, this one, see, constant enthalpy line. And more diverted one more line, constant entropy line is also there. So constant enthalpy line, you see, it is coming like this, constant enthalpy line, and going upward. Then enthalpy can be direct read from these lines, and temperature can be direct read from these lines. So this point is the critical point. Above this, all the temperature line which is coming, they are touching and going directly downward. And if it is supercritical, then it is not touching even the critical point, it is going directly downward. So this is the enthalpy temperature diagram for any refrigerant, general. Now I will show you the particular refrigerant enthalpy temperature diagrams one by one. See, this is the enthalpy, this is the pressure enthalpy diagram for refrigerant R11. What is here also the same thing is happening, that here it is coming from this, it is going upward, and it is coming like this. So temperature line is again horizontal line over here, then getting vertical, and then going downward. You see all the lines are going downward. So many lines are going downward. And constant entropy line is this one. See, constant entropy line. This is the constant entropy line. It is written over here, entropy, enthalpy and temperature. Enthalpy line, saturated vapor line. This is the saturated vapor line. This is the saturated liquid line. Beyond this, it is subcooled liquid. Beyond this, it is superheated vapor. This is the pressure, this is the enthalpy. Now here it is written constant entropy line,
and constant volume line. Constant volume line is also indicated over here. That is dotted line, which is constant volume line. Constant temperature line, it is very clear. Then constant entropy line, this curved line, these are the constant entropy line, and constant volume line, constant entropy line, constant temperature line, and this is the saturated liquid line, vapor line, and this is saturated liquid line. This is for the pressure enthalpy diagram for the refrigerant R11. Next I will show you the diagram for another refrigerant. See, this is your R12 refrigerant. Again the same process is here. This is the liquid line. This is the liquid line which is coming over here. This is the vapor line. So it is coming in contact somewhere here outside. So this is your liquid line, this is your vapor line, and constant temperature line are this one, this constant temperature line, they are getting horizontal and going downward. So this is your temperature line, and constant enthalpy line is this one which is going upward. This is constant enthalpy line which is clearly shown over here. Then constant volume line, of course dotted line are the constant volume line. So this chart is for enthalpy and pressure chart, and for the refrigerant R12, very common refrigerant which is being used nowadays also, even today it is being used. So this is the chart for the R12, saturated liquid line, saturated vapor line. In between, that is the mixture of the two. This side it is super cool line, this side is super vapor line, super saturated vapor line. These lines, temperature line, then entropy line, and then constant volume line. Three lines are very clear. Okay, enthalpy line is given. Enthalpy line, that will be directly upward, which is going upward. This enthalpy is there, directly going upward. So these are enthalpy line. Pressure line, directly horizontal line. These are the pressure line. Okay. Next, I will show you about the other refrigerant, and that is your pressure enthalpy chart of R22. R22 very common refrigerant. R22 is very common refrigerant which is being used nowadays also. Even today also we are using R22 refrigerant, and again you will see that saturated liquid line is here. Then this is your saturated vapor line. These two lines are coming in contact over here. Critical point is here. This is the constant temperature line, and this is the horizontal line that goes downward. That is the constant temperature line. Okay. Then constant entropy line, that is the line which is going in that way. This is the constant entropy line. Constant volume line, dotted line is the constant volume line. See how many lines are available in this pH chart for any refrigerant. We can directly find out the values seeing the chart only. Then enthalpy, vertical line, all the vertical line are enthalpy line, all the vertical line are enthalpy line, and pressure line, they are all the horizontal line, these are the pressure line. So we are getting 5 things at a time. Temperature, we are getting entropy, we are getting specific volume, constant volume line we are getting, then pressure line and enthalpy line. All the lines we are getting in one figure. Okay, so this is very important. R22 refrigerant is still being used. अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं R22 refrigerant. That is chlorofluorocarbon. It is having one molecule of chlorine, and presence of chlorine is anti-ODP. ODP कम कर देता है क्लोरीन, इसलिए इसका यूज़ जो है 2030 के बाद ख़त्म हो जाएगा इंडिया में. Then next I will be coming to you R134A. This refrigerant is being used nowadays. Again same thing has to be followed. This is the saturated liquid line, this is the saturated vapor line. Both the line are touching somewhere here in critical point. Then we have got constant temperature line, this vertical line constant temperature, and then they are getting in horizontal position, and then they goes downward. See, all of them are going downward. That is constant temperature line.
Then constant entropy line. Constant entropy line is this one. See, constant entropy line. Then specific volume line. Specific volume line, that is your this line, specific volume line, dotted line. These are the specific volume line. Okay, specific volume line. From specific volume we can find the density also. Then constant pressure line, horizontal line are constant pressure line, and enthalpy line, constant vertical line are the enthalpy line. So in that way we have got the chart for 134A. This refrigerant is commonly used even today. Even today we are using it commonly. It is commonly being used today also. In automobile we are using 134A refrigerant because ODP of 134A is very less, 0. Ozone depleting potential is almost 0, but we have got this global warming potential with this refrigerant. It has got the global warming potential. So keeping that in view, because ozone depleting is 0, it is being used maximum. Next comes R502. R502. There are different refrigerants I am showing you. The line, the diagram I am trying to show you, trying to explain you. This is your again saturated liquid line, this is saturated vapor line. ठीक है, R502 refrigerant. Again temperature line are vertical, then they are crossing it in between the gas and liquid phase. They are crossing as a horizontal line, then they are going downward. They are going downward. Downward they are going constant temperature line. So, and now specific volume line, dotted line, constant volume line, dotted line are the specific volume line, and this horizontal line is the pressure line, horizontal line is the pressure line, and vertical line is the enthalpy line. So all the 5 characteristics of a refrigerant has been shown in one chart, and this chart is known as enthalpy pressure chart. Okay, they can be asked in examination also. It can be asked. You may be asked to solve the numerical. So numerical can be easily solved using this chart. Okay, then we have got another refrigerant, very common refrigerant, ammonia. This is used very much. So you should be very clear about the ammonia chart. Again, ammonia chart. This is your saturated liquid line and saturated vapor line. These lines are touching somewhere. That point is the critical point. Now again the temperature line going horizontal over here, then coming vertical, then they are going downward. See, all the temperature line are going downward. Be sure about that. Okay, there should not be any confusion. And that constant entropy line, this one, constant entropy line, dark line, this is the constant entropy line. Then constant volume line, that is dotted one. Dotted one is the constant volume line. Constant volume line. So again 5 things are over here. That is your temperature line, then your entropy line, and then your constant volume line, then pressure line, all the horizontal line, and enthalpy line, all the vertical line. So 5 things are over here. This chart is very important, ammonia chart, because numericals normally comes with the help of ammonia chart. You can solve it very well. Okay? So you must be aware about the various line, then only you can attack the numerical. Line should be very clear, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किधर है. तो ये लाइन आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अमोनिया बहुत कॉमन रेफ्रिजरेंट है, बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसके विषय में जानना अति आवश्यक है. ठीक है. उसके बाद अब हमारा आता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और मैं आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक और दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत बड़ा है. इसके पहले बेटा फिर हम दिखा दें आपको, ये अमोनिया का ही चार्ट है. ये अमोनिया का चार्ट, दैट इज़ रिगार्डिंग enthalpy, and that is regarding enthalpy
and then your this different chart. I believe it is specific enthalpy and temperature. Temperature is over here. Temperature line are like this. Okay, we need not to go for this chart. Pressure enthalpy chart. This is pressure this line and enthalpy this line. Pressure enthalpy chart, it is also there. So this is the liquid line which is coming over here, and this is the vapor line, so saturated vapor line. टेम्परेचर लाइन देखिए दिखा रहे हैं इसमें माइनस माइनस जीरो करके, फिर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है देखिए अंदर में जा कर के, और फिर ये लाइन इंक्लाइंड होकर के नीचे चली जा रही है। ठीक है ना, इस तरह से हम दिखा रहे हैं, इनमें हम टेम्परेचर दिखा रहे हैं और टेम्परेचर दिखा रहे हैं, और ये सैचुरेटेड वेपर लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। एंट्रोपी की लाइन फिर हम यहाँ से दिखा सकते हैं। एंट्रोपी लाइन फिर हमारी जो जा रही है सीधा सीधा जाएगी, सीधा सीधा जा रही है एंट्रोपी लाइन। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन भी दिखा सकते हैं इसमें हम। उसके बाद यहाँ पर अंदर में देखिए आपको दिया हुआ है, अंदर में क्या दिया है, वॉल्यूम तो दिया ही है, साथ में आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन भी दे दिया है। एक्स की वैल्यू 0.51, 1.534 लाइक दैट। ड्राइनेस फ्रैक्शन भी इसमें दे दिया हमको कि अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड और गैस के बीच में आता है तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस चार्ट से, अमोनिया के लिए। तो इस चार्ट में हम देख रहे हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आ रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आ रहा है, उसके बाद आपका प्रेशर भी आ रहा है, एंट्रोपी भी, एंथैल्पी भी आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है और एंट्रोपी भी आ रहा है। तो इसमें कई चीज़ें आ रही हैं। तो अमोनिया का ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसके बाद बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू शो यू, दैट इज़ योर साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट आप देखें ध्यान से, देखिए पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, लेकिन इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में बेटा सबसे पहले नीचे का पोर्शन हम दिखाएं आपको। ये देखिए नीचे का पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, दैट इज़ योर टेम्परेचर लाइन। ये देख रहे हो एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लाइन है। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि माइनस से शुरू हो रहा है, जीरो, यहाँ पर बेटा 0 है, लेकिन माइनस चार्ट पे जा रहा है, टेम्परेचर लाइन -x पर है। उसके बाद बेटा वाई एक्सिस पर हम आ जाएँ तो वाई एक्सिस पर हम क्या देखेंगे, वाई एक्सिस पर देखेंगे हम, ये आपका क्या है, ये वाई एक्सिस पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन है। तो दो लाइन तो बहुत क्लियर हो गई, टेम्परेचर लाइन और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका हो गया इस पर टेम्परेचर लाइन, और ये राइट में जो लाइन सीधे जा रही है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। यूनिट दिया है बेटा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और टेम्परेचर का दिया है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर लाइन। अब उसके बाद थर्ड चीज़ हम देखते हैं कर्व लाइन। देख रहे हो कितने कर्व लाइन दिख रही हैं, दिस कर्व लाइन आर योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। इनकी वैल्यू भी आप अगर देखें ध्यान से बेटा तो यहाँ पर 10% है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ आकर के बेटा ये 100% लाइन हो जाती है। ठीक है, कर्व लाइन की ये 100% लाइन हो जाती है। ठीक, क्लियर। उसके बाद बेटा थर्ड हमारे पास आता है, रेड कलर वाली लाइन दिख रही है, ये हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, जो कि यहाँ पर टेम्परेचर का रीडिंग दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20 लाइक दैट, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। इसी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को अगर जब हम आगे बढ़ा देते हैं तो हम सीधा एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एंथैल्पी वाला रीडिंग है। एक्चुअली बेटा जो एंथैल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन में तो बहुत थोड़ा फ़र्क होता है, तो इसलिए इन्होंने कॉमन कर दिया दोनों को लेकर के, एंथैल्पी एंड वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन एक ही लाइन से शो कर दिया। ठीक, अब उसके बाद पाँचवा लाइन आती है बेटा, वो है तुम्हारी स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन जो होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी कम होती है। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन ज़्यादा टेढ़ी है, ज़्यादा एंगल कम है उसका, और स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन का एंगल ज़्यादा होता है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। हम किसी भी पॉइंट पर अगर दो चीज़ हम पता कर लें तो बाकी सब चीज़ हम पता कर ले जाते हैं। अब बेटा इसके चार्ट के लेफ़्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो ये सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बना हुआ, देखिए कॉर्नर में सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन, ये देखिए सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन बना हुआ है, ये सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है।
जिससे कि डायरेक्ट हम सेंसिबल हीट फैक्टर कैलकुलेट करके और अलाइनमेंट सर्किल कहाँ होगा बेटा 26 डिग्री टेम्परेचर एंड 50% RH पर उसको मिला देते हैं, तो देन दैट इज़ कॉल्ड बेस लाइन, उसको बेस लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, राइट हैंड साइड में हमारा जो है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में एक और स्केल होता है, दैट इज़ वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी, वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी। तो देखिए आप कितनी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही हैं। वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी, सेंसिबल हीट फैक्टर, देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम, देन RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इतनी चीज़ें हमें सब पता चल रही हैं इसमें। सो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। एज ए डिज़ाइन इंजीनियर आपको इसके बारे में पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए। अब कोई भी 2 पॉइंट आप ले लें बेटा, जैसे सपोज कर लो हमको मालूम है DBT एंड WBT मालूम है, कोई DBT मान लो 20 डिग्री और WBT भी 20 डिग्री, तो 20 डिग्री की लाइन कहाँ हुआ हमारा, DBT की 20 डिग्री की लाइन यहाँ होगी, यहाँ से हम चलेंगे बेटा। और WBT भी बोल रहा 20 डिग्री, तो WBT 20 डिग्री कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो रहा बेटा, तो यहाँ आएंगे, यहाँ कहीं कट करेगा, ये जहाँ कट करेगा यहाँ कहीं कट करेगा, है ना। आई थिंक इट विल कट 20 एंड 20, यहाँ कहीं कट करेगा बेटा। अब इस पॉइंट पर जो है हम हर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम पता कर सकते हैं, कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम है, सीधा यहाँ पर बेटा हम सीधा पता कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है ये पता कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा फिर हम पता कर सकते हैं एंथैल्पी कितना है, एंथैल्पी डायरेक्ट लाइन खींचेंगे एंथैल्पी पता चल जाएगा, एंथैल्पी रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव स्पेसिफिक वॉल्यूम, और उसके बाद बेटा हम इससे ये भी पता कर सकते हैं, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो हमको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डायरेक्ट मिल जाएगी, हमको डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो डायरेक्ट मिल जाएगी। और इसी लाइन को अगर हमें आगे बढ़ा दे बेटा तो यहाँ पर ADP एपरेटस ड्यू पॉइंट भी मिल जाएगा यहीं पर, ADP अगर इसको हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ा देंगे तो ADP भी मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आप ये देखें कि 2 चीज़ पता होने से, अगर हमें 2 चीज़ मालूम है बेटा, तो हम सभी चीज़ें जो है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन के सब पता कर सकते हैं। अब किसी पॉइंट पर अगर हमको वेपर प्रेशर पता करना है mm ऑफ मरकरी, सीधा लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट mm ऑफ मरकरी पता चल जाएगा। तो देखो इसमें कलर से बताया भी है इन्होंने, कलर के थ्रू बताया इन्होंने कि कौन कौन सी लाइन कहाँ पर है। इधर देखिए कलर कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन RH लाइन दिखाया है, जो कर्व वाली लाइन है दैट इज RH लाइन। देन कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन जो लाल वाले जो दिखाया है ये है। देन कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, कांस्टेंट ब्लू वाला जो है बेटा कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। फिर एंथैल्पी डेविएशन लाइन, इसमें नहीं दिखाया, एंथैल्पी डेविएशन लाइन दिखाया, एंथैल्पी डेविएशन लाइन दिखाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है एंथैल्पी डेविएशन लाइन जानने के लिए। तो डायरेक्टली हमने आपको क्या बताया बेटा कि जो भी 2 चीज़ अगर आपको मालूम है तो ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट इसलिए हम लाए हैं आपको दिखाने के लिए ही कि क्या होता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, तो इसका छोटा साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हम लेके आए हैं ताकि आपको समझ में आवे। छोटा वर्जन है जो पूरे पढ़ने पर आ जाएगा बेटा। यही आपका DBT हुआ, WBT हुआ, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन हुआ, और सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन हुआ। इधर में होता है बेटा mm ऑफ मरकरी वाटर प्रेशर। इस तरह से ये एंथैल्पी का लाइन हुआ। इस तरह से छोटे फॉर्म में भी हम सब कुछ वैल्यू जो है इसका जान सकते हैं, और ये चीज़ बहुत यूज़फुल है, आपके काम आएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, ये हमने आपको सब चार्ट दिखाया बेटा। इन सब चार्टों में सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट जो था वो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट का चार्ट था। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का चार्ट फिर हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, समझ जाए आप पूरा अच्छी तरीके से कि ये होता क्या है, कौन सी बला है। तो देखिए इसके लिए इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने कितना रिसर्च किया होगा तब जाके एक चार्ट बनाया होगा, दैट यू कैन वेरी वेल इमेजिन। और वो इंजीनियर साइंटिस्ट आपकी तरह से होंगे, आप जैसे बच्चे हो अभी, जब आप भी बड़े होंगे इंजीनियर साइंटिस्ट बनोगे बेटा तो आप भी ऐसे ही चार्ट या ऐसी चीज़ें आप भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें बेटा -x एक्सिस पर जो है तुम्हारा DBT,
माइनस एक्स एक्सिस पर डी है, ठीक है। फिर वाई एक्सिस पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। दो एकदम क्लियर है। रिपीट कर रहे हैं हम इसको, रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके काफ़ी कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद बेटा यहाँ पर दिया हुआ सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मरकरी दिया हुआ है। उसके बाद बेटा ये एंथैल्पी की लाइन दी हुई है, और लाल वाली लाइन जो शो कर रहा है वो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन है, और वर्टिकल लाइन जितनी भी है बेटा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है, ड्राई बल्ब DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। वर्टिकल लाइन जितनी भी वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी है बेटा वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी है, तो इस तरह से बेटा हमने इसमें अगर कोई दो चीज़ हमको मालूम है तो हम सभी चीज़ें बिना कैलकुलेशन का इसके थ्रू कर लेते हैं। प्रैक्टिकली हम बिना कैलकुलेशन का इसके थ्रू कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? मान लो दो चीज़ हमको पता है, DBT पता है और WBT पता है। DBT WBT जहाँ कट करेंगे उस पॉइंट पर हम जो है हर एक प्रॉपर्टी को देख सकेंगे। जहाँ भी कट करें कोई ज़रूरी नहीं DBT WBT हो, कोई दो चीज़ हो, RH है या WBT है, या RH है DBT है, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है DBT है, DBT नहीं भी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है RH है, तो वी कैन गो फॉर एनी लाइन, एनी प्रॉपर्टी। कहीं भी कोई प्रॉपर्टी देखनी हो डायरेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। यही इसका बेनिफिट है, यही इसका फ़ायदा है, और आजकल के इंजीनियर्स इसको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ बीइंग वाइडली यूज्ड। ये चार्ट हमने दिखाया था, ये अमोनिया का चार्ट था बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अमोनिया रेफ्रिजरेंट बहुत यूज़ होता है, खासतौर से आइस प्लांट में। आइस प्लांट में होता है अमोनिया। क्यों ज़्यादा यूज़ होता है बेटा? कैन एनीबॉडी टेल में? क्योंकि इसका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अमोनिया में सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है कि ये बहुत टॉक्सिक होता है। महक अगर ज़रा सा भी आई तो यू कैन नॉट स्टे ओवर देयर, ठीक है। लीकेज इसका अगर होता है तो बहुत टॉक्सिक होता है, और लीकेज डिटेक्ट करने के लिए हेलाइड टॉर्च होता है, उससे लीकेज डिटेक्ट कर सकते हैं, या सोप सोल्यूशन से भी कर सकते हैं। तो दोनों से लीकेज डिटेक्शन हो जाता है। तो लीकेज अगर ज़रा सा भी होगा अमोनिया का तो यू कैन नॉट स्टे, आप रुक नहीं सकते। लेकिन अच्छा दूसरी चीज़ और बेटा, अमोनिया रेफ्रिजरेंट जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पे जो पाइपलाइन वगैरह होती है बेटा वो हमेशा स्टील की पाइपलाइन यूज़ करते हैं, MS की लाइन या स्टेनलेस स्टील की लाइन। वी नेवर गो फॉर द कॉपर, ब्रास या एल्युमिनियम, इसकी लाइन हम कभी भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो रिएक्टिव होता है, इन सब मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसलिए इसके लिए हम कॉपर, ब्रास या एल्युमिनियम की पाइपलाइन नहीं यूज़ करते। सॉरी, हम लोग नहीं यूज़ करते, इसलिए इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड होता है। लेकिन अमोनिया इज़ ए गुड रेफ्रिजरेंट, सो वी यूज़ इट फॉर द रेफ्रिजरेशन पर्पस, ठीक है। सैक्रोमेटिक क्या होता है? वेरी सॉरी, क्षमा कीजिएगा। साइक्रोमेटिक चार्ट भी हमने आपको समझा दिया क्या होता है साइक्रोमेटिक चार्ट में, ये हमने सब आपको बता दिया। साइक्रोमेटिक चार्ट अक्सर पूछा गया है एग्ज़ाम में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर डिज़ाइन इंजीनियर। जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए साइक्रोमेटिक चार्ट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मैंने डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के आपको pH डायग्राम शो किया, R12, R22, R134A और R134A, ये सब के हमने आपको pH डायग्राम शो किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है pH डायग्राम। और न्यूमेरिकल्स जो है जब आते हैं तो आपको डायग्राम से देख करके ही वैल्यू निकालने लगते हैं, क्योंकि डायग्राम से देख के वैल्यू निकालना आसान होता है, कैलकुलेशन करके निकालने में दिक्कत होती है। तो न्यूमेरिकल जो भी आएगा आपको डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा। आप डायग्राम मांग भी सकते हैं एग्जाम में, अगर ये न्यूमेरिकल आया हुआ है तो आप डायग्राम मांग सकते हैं, तो हमको डायग्राम चाहिए। डायग्राम से करने से कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाते हैं और बहुत आसान हो जाते हैं, और कोई इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है।
खासतौर से साइक्रोमेट्रिक चार्ट का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका डायग्राम जो है इसको यूज़ करने से आप कोई कैलकुलेशन नहीं करते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।